Yes friends, so lastly we have understood about the stoichiometry, right? Now today let's try to understand couple of examples related to stoichiometry. देखो दोस्तों, कंसेप्ट बिल्कुल सीधा साधा है. तो पहला स्टेप क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स रिलेटिव numbers, whichever is given, maybe mass given, maybe volume given, that depends on reaction to reaction. ये रिएक्शन टू रिएक्शन पर डिपेंड करेगा. जैसे ये एक एग्जांपल है जो आपकी बुक में भी सॉल्व किया गया है, उसको समझते हैं पहले. एक कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन. तो केमिस्ट्री में दोस्तों सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इवन सभी सब्जेक्ट में, कि जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है उसको परफेक्ट समझना. परफेक्शन से अगर समझोगे तो सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है. खास करके केमिस्ट्री में क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसेप्चुअल होती हैं, कंसेप्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं. वैसे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये, राइट? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. तो एक क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? तो अमाउंट ऑफ वाटर दैट प्रोड्यूस बाय द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन. तो देखो इसमें चार चीज़ें हमको दी गई है. नंबर 1, तो क्या कैलकुलेट करना है? तो अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है. सेकेंडली, किससे? तो ऑन दी बाय द कंबस्शन ऑफ मीथेन. कितना? तो 16 ग्राम. ओके, सो एज वी अंडरस्टूड, लेट्स राइट इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अगर आपको उसमें भी दिक्कत है तो पहले उसका स्केलेटल इक्वेशन लिखिए. तो जैसे भाई मीथेन और कंबस्शन, तो देखो कंबस्शन में एक चीज़ छुपी हुई है. क्या है? दैट इज ऑक्सीजन. Oxygen is not mentioned, right? It's a reaction in which 16 gram of methane is burned in presence of air. Correct. So let's write it skeletal, basic equation. So what is the molecular formula of methane? Okay, this should be known to us. ये हमें पता होना चाहिए. अगर मीथेन की फॉर्मूला पता नहीं है तो बात ख़त्म हो जाती है, right? So let's write the balance equation. Okay, let's write skeletal equation. So CH4 is the molecular formula of methane. State of matter is the gas, and on combustion, that means in presence of oxygen. Oxygen is also a gas, correct? And when any hydrocarbon generally combusts, that produce carbon dioxide and water. So CO2 plus H2O, and that is also in gaseous form, right? So this is a skeletal equation. Now let's balance it. Sometime it may be balanced also, it may not be. Here this equation is not balanced, right? So let's balance it. So one carbon, fine enough. 4 hydrogen, 2 hydrogen, so let's multiply it by 2. So here it becomes 2 oxygen plus 2, total 4. So here 2O2, right? Now अब इसको स्टोकियोमेट्री में कैसे इसको समझा जाए? तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स of water. So this is related to the moles. Now if we want to transform into the mass, so 1 mole, now 1 mole that exactly equals what? The molecular mass of any given substance. Suppose मैं बोलूँ कि भाई 1 mole of oxygen, dioxygen, O2, that means 32. If I say 1 mole carbon dioxide, 44 gram, because its molecular mass is also 44 gram per mole. 1 mole of water, that means 18 gram per mole, right? So when we speak 1 mole, that
mass is exactly as its molecular or atomic mass. So here mass of methane we know how much, 12 plus 4 total 16. So we can say 16 gram of methane when undergoes combustion. देखो यहाँ दो चीज़ की बात हो रही है, एक वाटर और एक मीथेन, तो बाकी चीज़ों में ना पड़े तो भी बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ढूंढना क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर, नॉट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और नॉट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो लेट्स लीव इट असाइड. सो लेट्स फोकस ऑन मीथेन एंड वाटर. करेक्ट. नाउ 16 ग्राम ऑफ मीथेन दैट इज गोइंग टू गिव 2 into what? So as we say 1 mole of water, that means molecular mass of water is 18 gram per mole. So with reference to what we can say, when 1 mole methane on combustion gives how much? 2 moles of water, right? So we can say 16 gram of methane that is going to give, so moles are already 2, now 2 into molecular mass of water, right? So 2 multiplied by molecular mass of water is 18 gram per mole. So total 18 to the 36 gram water will be formed, because mole will be nullified, mole per mole, right? So we can say that 16 gram of methane when combust, that is going to produce 36 gram of water. So friend, this is nothing but the stoichiometric based calculation. So again I am repeating, first look at the problem statement given and from that decide the balanced chemical equation, and then after if you look at these all quantities, whatever water, methane, whichever is given, so on that basis you can frame your calculation. This may be based on oxygen also to carbon dioxide also, maybe carbon dioxide to oxygen, that depends. क्वेश्चन देखो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो फंडामेंट्स है वो यही है. आप स्टेप्स से जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एक शायद और भी एग्जांपल है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. Yes, so let's talk about the another example, number 2. The question is, how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion? तो देखो वही क्वेश्चन है, वही रिएक्शन है, सॉरी क्वेश्चन वही नहीं है, रिएक्शन वही है, लेकिन क्वेश्चन ज़रा उल्टे तरीके से पूछा है, डिफरेंट एंगल से. जो आगे वाला एग्जांपल हमने डिस्कस किया वो दैट वाज बेस्ड ऑन क्वांटिटी ग्राम्स में, अब ये मोल की बात आ रही. सो हाउ मैनी मोल्स, मोल हमें कैलकुलेट करना है किसके, तो मीथेन के, और कहाँ पर, तो जो वो प्रोड्यूस करेगा कितना, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन. तो हमें मीथेन के मोल ढूंढने हैं. कितने मोल, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने मोल मीथेन चाहिए, ये इसका सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला स्टेप आएगा वो क्या आएगा, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, CH4 क्योंकि मीथेन है, प्लस लेट्स राइट 2O2, ए बैलेंस इक्वेशन that gives CO2 plus 2H2O. तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अब किसकी बात है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ना ऑक्सीजन ना वाटर.
So let's start from the mole aspect. So again, what we can write, that 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen, that produce 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. Now we know that 1 mole, that equals to how much gram? So we can write that 16 gram of methane, when it combusts, that produce 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब 16 ग्राम मीथेन कंबस्ट होता है तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. अब हमें 44 नहीं है, क्या दिया गया है कि 22 ग्राम प्रोड्यूस करना हो. 22 ग्राम प्रोड्यूस करना हो तो मीथेन के कितने मोल चाहिए. सो लेट अस राइट इन दिस वे. सो टू प्रोड्यूस कितना है अकॉर्डिंग टू स्टोकियोमेट्री, 44 ग्राम CO2, राइट. हाउ मच मीथेन रिक्वायर्ड? सो 16 ग्राम मीथेन required, right? So how much we are going to produce? So even equally we can say that, so 1 mole carbon dioxide is formed by the combustion of 1 mole of methane. That's right. So now let's simply calculate that 22 gram, for 22 gram how much there? So what we write, 44 gram required by 1 mole of methane. So for 22 gram carbon dioxide, how much? So simple calculation is there, 22 gram into 1 mole divided by 44 gram. So what will be the answer? 1/2. That 1/2, that means 0.5, right? So we can write 0.5 mole, right? So we require 0.5 mole, means half mole, for the production of 22 gram carbon dioxide ऑफ मीथेन. तो हमें 0.5 आधा मोल चाहिए. देखो अब सिंपल सी बात है, 44 का आधा 22 है, बिल्कुल एपरेंट है. सो फॉर दिस क्वांटिटी यू रिक्वायर्ड 1. सो हाफ, फॉर हाफ क्वांटिटी हाउ मच यू रिक्वायर्ड? सो हाफ. बट दिस विल नॉट बी द ऑलवेज द केस. हर बार ऐसा सिंपल नहीं आएगा. आपको जब फेस करेंगे तो आप इससे थोड़े टफ एग्जाम्पल या क्वेश्चन से आपको एनकाउंटर करना पड़ेगा. लेकिन सिस्टम, अगेन आई एम रिपीटिंग, द सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्ट है. तो पहला इक्वेशन बैलेंस करो, क्या ढूंढना है उसको कोरिलेट करो. चाहे मोल में दिया हो तो मोल में कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राम में दिया है तो ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं. मान लो लीटर है, ये सब गैसेज है, तो उसको हम लीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज ग्राम में ही हो, दिस कैन बी लीटर. सो मान लो 1 मोल का लीटर कितना होगा? 22.4, राइट. सो वी कैन गो फॉर लीटर्स ऑल्सो, दैट डजंट मैटर एट ऑल. क्लियर. एक चीज़ मैं आपको और क्लैरिटी कर दूँ कि इफ़ यू कम अक्रॉस STP, you understand, right? Standard temperature and pressure, 0 degree or 273 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure. कई बार आपको एक शब्द भी आएगा NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. आपको यही समझना है. द थिंग इज दैट, सेम एज दैट. ऑल राइट. सो स्टडी दिस एग्जाम्पल्स केयरफुली. This is all about the stoichiometry, but remember the steps. Steps are important, concept is important, rest is the simple thing. Thank you.